वेलकम बैक जी जनाब। अच्छा जी तुसी अपना कभी मेकअप मैन वेख्या नवीद वफा क्यों उसके खिलाफ क्यों? ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਹਰੀੜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ। यार देखो हमारा इंचार्ज है गेटअप का, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸੜੇ ਰਾਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। दिखाएं जी, उसकी तस्वीर भी दिखाएं। ਵੇਖ ਲਓ ਤਸਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। वो एक्टर भी है और आपको पता है बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुका है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट कमाल है। गेटअप आर्टिस्ट मेकअप में बेस्ट है शेरी। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी हकीम साहब भी हैं। ਬੜਾ ਸੜੇ ਫੁੱਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। बहुत वक्त ज़ाया करते हैं वो हमारा। ओए होए होए ਉਹ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। जी। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਘਟੀਆ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। वो बैठी नजर नहीं आ रही नायाब। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਸਰ ਸੀ। आपके शो के जो फोटोग्राफर हैं और कैमरामैन ਤੂੰ भी बहुत अच्छे हैं। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। बिलाल मीर हमारा फोटोग्राफर है क्या बात। और बिलाल मीर 2 in 1 है। ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਜੀ। ओ यार ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ 2 on 1 ओ यार डुअल पर्पस, वो फोटोग्राफर भी है और पार्ट टाइम सिंगर भी है। ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਲ ਅਲੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ हाँ ਕਰ जी। ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੇਰੀ चुप रहो ना जी आप। ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਟਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। नहीं उसकी बात पहले सुन लेना। ਸਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਤਾ ਸੀ। यार आप रियल लाइफ में क्या है? ਮਰਾਸੀ। नहीं नहीं सीरियसली बताएं, आप वहाँ स्टूडियो के आसपास ही रहते ਹਾਂ हैं? ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਹੀ। शाहनूर के सामने जो कॉलोनी है, ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਕੀਮ ਮੋੜ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। स्कीम मोड़ तो बहुत उरे है। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। हाँ जी उसके ਉਹਦੇ पीछे ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਦਪੁਰ। सैदपुर। ਹਾਂਜੀ ਸੈਦਪੁਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। एक जमाना था शहजादा होटल की कढ़ाई बड़ी मशहूर थी। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਮਕੀ। सिमकी की अब अच्छी है। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਸਿਮਕੀ। कढ़ाई तो वैसे एक ही है पूरे पाकिस्तान में, बुलबुल से अच्छी कढ़ाई किसी की नहीं। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? साहिवाल। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਈਵਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੜਾਈ ਕੋ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਉਹ। ਬੁਲਬੁਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਅਲੀ ਤੇ ਬੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। वो अपने लिए ऑनर समझते नहीं, होंगे, मित्र- बड़े फनकार परस्त लोग हैं। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, हाँ जी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਨ ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਜਮਾਨ वो ਕਾਰੀ। अली जो है वो रिजवी ही है, वही है। अली रिजवी। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਜਮਾਨ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਨ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਨ ਲਿਆਉਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਨ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਦਾ ਜੇ। आफ्ताब साहब नसीर भाई दा चैलेंज क्यों नहीं करदे? हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह रमजान के बाद। ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। नहीं नहीं नसीर भाई का चैलेंज हम एक और तरह से करते हैं, नायाब किया करेगी। ਵੈਸੇ ਨਸੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। हाँ नसीर भाई एक बड़े उम्दा आदमी थे। जावेद इस्लाम को देख के मुझे नसीर भाई बहुत याद आते हैं। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਸੀਰ ਬਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। हाँ जी बहुत जहीन था वो। क्या बात। ਹਾਂ ਜੀ। मैं कहता हूँ इस कदर कंप्यूटराइज्ड मेमोरी, ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी मैंने शायद ही किसी की देखी हो। ਔਰ ਕਿਊਟ ਬੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਆਰਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ। और ये छेड़ते थे क्या कहते थे? ये आज पता नहीं कितने साल बाद हमने सुनी। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਸਨ। ये हाँ ये मुझे तंग करता है, मुझे कंफ्यूज करता है। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸਨੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲਕਾ ਬਣੀ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। अच्छा ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੇ ਰਿਵਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, मैं अपने पूरे ਤੇ धाड़ धाड़ रोना शुरू कर देता। क्यों? कहते जी मेरी बेइज्जती की है, मुझे डांटा है, ये क्या तरीका है, ये कोई काम है, इस तरह काम होता है। ये कौन सी बातें लेके बैठ गए हैं आप? छोड़े, आप 1000-2000 दे देती ना, तंग करता आप। बस ज़हन में नहीं आया। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ लियाकत अजीम। लियाकत वो अजीम बड़ा नफीस आदमी, अरबी जबान का स्कॉलर है वो, और हाँ जी, आजकल हाँ जी। बीमार भी है। अल्लाह ताला उनसे। ਵੈਸੇ ਅਫਤਾਰੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैंने कल परसों भी बताया था, दही बड़े, ਹਾਂਜੀ। फ्रूट सैलड और स्कंजबीन, नमकीन,
मैं पिछली ईद ते खादा सी दही बड़े और ये वो। रोजा रखोगे ना जिस दिन मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें लाद दूंगा इसमें। अच्छा ये बताइए खजूर कौन सी खाते हैं, मलाई वाली बादामों वाली? नहीं कुछ भी नहीं, सादा खजूर, अंबर, बेहतरीन। लग भी पर रहा। खजूर से बड़ी महंगी नहीं की। रोजा किस दिन रखोगे? कल रखोगे रोजा? कहते हो तो रख लेना। हाँ जी रखो, जरूर रखो, कल मैं तुम्हें अंबर खिलाऊंगा। वैसे है किमें किलो अंबर? मुझे क्या पता, सान दसो तो सही सी। मुझे नहीं पता कितने किलो वो ले आते हैं, मैं दे मैं रोजा नहीं छड़ता रियल लाइफ में रखते हो? जी, रियल लाइफ वेरी गुड। रोजा नहीं छोड़ता। ਸੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਬਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। सलीम अलबेला। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਨੇਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਦਾ वैसे जेड की निब बिल्कुल इस जैसी होती है। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। याद रखना हकीम साहब की बातें जो है ना, ਹਾਂਜੀ उनमें विट कम और विजडम ज्यादा होती है। ਵਾਹ ਯਾਨੀ ਕਿ उम्र का तकाजा सर। हाँ उनका मुशाहिदा बहुत जबरदस्त है। नॉर्मन विजडम। नॉर्मन विजडम वो तो एक्टर था यार। हाँ जी हाँ जी। जैसे आज वो नजर नहीं आ रहा, एनी शाहिद। एनी शायद जल्दी चला गया है, उसकी खांसी नहीं रुक रही थी। ਅਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਬਦ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? उनके दांतों का प्रॉब्लम। ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀਨ ਪੀ ਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ, हाँ जी ਥਾਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੂਸ ਕੋਈ ਚਾय? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आपको आज हम हैम्पर्स देंगे, गिफ्ट हैम्पर्स। अच्छा जी। उसमें एक एक ईद का सूट होगा ਆਏ। आपके लिए, अच्छा जी। एक एक आपकी बेगम के लिए। ਤੇ ਸਰ ਹਨੀ ਕੀ ਕਰਸੀ? ये दो होंगे। तो उसके साथ साथ आपको खजूरों के पैक्स मिलेंगे। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋ आप न्यूज की तरफ से अच्छा सर सूट बाद च देना, खजूरा दे उसी यारे लगी है जरा बैठे थे। लेकर जाने साथ आपने पैक्ड है, इसको खोलोगे वो? ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਦ ਦਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ओ बादशाह ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਐਂਟਰੀ ਕੱਟਤੀ ਹੈ। ये साजिश की थी तुसी इन्हें उसके बुलाया। पैसे दो, उसके पैसे क्यों नहीं ਇੱਕ देते हो? ਮਿੰਟ हाय अल्लाह मैं क्या करूं, मैं तो इधर से परे भी नहीं जा सकती। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। निकलने वाली गल कर ओ ते पीछे चली जा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। मैंने कहा यहाँ आ जाइए। ਤੂੰ ਵੱਜ ਜਾ। आप इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए। ਨਾ 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 ਨਾ। इधर तो ओ चूंगे जो दित्तियां सिर्फ खजूरा इधर जा। वो जिधर जाना चाहती हैं उन्हें जाने दो। मलका आगे से हटो, तू मेरी लाश तो लंघ के जाएंगी। हटो। अच्छा ठीक, लंघ गई हूं। लाश तो मेरी लंघ। वाह जी वाह। बड़े इंटरव्यू हो रहे हैं, बड़ियां खजूरां ते बड़े सूट हैं। ये बैठा किथे हुंदा है? बात सुनो, पैसे हम दे देंगे, इन्हें कुछ ना कहना। सर तुसी ते दे दोगे, ये बाहर अंदर लंघदे मैनू टिचकरा करते ने। तो तुम क्या अफसर हो उनके? सर मैं इन्हां कोलों पैसे लेने हैं, मेरी एक रकम है। ਫੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ। मत मारो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ। फ़तीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं मौसीकार घराने के साथ जो आज हमारा मेहमान है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि तुसी सानू अपने शो च मधु कीता। मैं तहे दिल नाल ਤੁਹਾਡਾ शुक्रगुजार। ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਲਾ, जी ਤੁਸੀਂ ਕੌਸਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ਜ਼ੀਨ ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। इसलिए कि कौसरी आपके घर का हिस्सा तो नहीं है ना? हमारे ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। भाई आप तो खान साहबान है, कौसरी तुम भी खान साहबान। नहीं जी मैं तो रहना। लो ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, हौसला खान साहब, हौसला। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਸਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। मुझे तो लगता है इनकी माँ को मारा भी आपने इसीलिए था। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਸਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज कैसा लग रहा है यहाँ बैठना? बड़ा अच्छा लग रहा है जी। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੌੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਫੇ ਸੁਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਕੁਰਸੀ। तुम बताओ, तुम और चौधरी रमजान में सरवाइव कैसे करते हो करप्शन के बगैर? अस्तगफिरुल्लाह सर, मैं तो सोचता हूँ कि जिस मुल्क में 5 मौसम है, वहाँ पर लोग करप्शन कैसे कर लेते हैं। वाह। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਪਾਗਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। वाकई लग रहा है जैसे कोई मजजूब हो गया, नहीं सर, या अकल आ गई है, कोई हिदायत मिल गई है। ਇਹ ਹਜ਼ੂर हर रमजान च इस तरह करते हैं।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ। हालांकि सारे महीने अल्लाह के होते हैं। पता नहीं क्या बेशर्मी आप लोगों में। सर तौबा करनी चाहिए ना ये महीने ते। हाँ, तुम जैसे यही कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई इबादत भी करते हो कि नहीं? ਲਓ ਦੱਸੋ। नहीं जी ਨਹੀਂ यानी नमाज भी नहीं पढ़ते? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ। चलो तुम सिर्फ नमाजें ही पढ़ लो, ये बड़ी गनीमत है। वैसे अपना आफ्ताब साहब की बाबरकत महीना सुभान अल्लाह। कैसा गुजरा रमजान? रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजर रहा है जी। रोजे रख रहे हैं हजूर, नमाजा पढ़ रहे हैं, अल्लाह नु याद कर। गुजर औकात कैसे होती है? ओ तुम कुछ देते भी हो इन्हें कि नहीं? सर अल्लाह ने सानू की देना है, जिहदे राह दे विच सब कुछ कर रहे हैं, जिहदे रोजे रख रहे हैं, जिहदे नमाजा पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ दे रहे हैं। ਉਹਦੀ ਅਨਾਇਤ ਬਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਜੀ, ਗਲ 'ਚ ਢੋਲਕ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ। हाँ जी हाँ जी। ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 10 ਵਾਲੇ 100 ਵਾਲੇ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਦਾ ਮੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਉੱਠ ਖਾਸ ਜ਼ਕੂਤ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਧੀ। कि तुम तो मुस्तहिक ही नहीं हो। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ। सहर और इफ्तार पे क्या करते हो? ਭਈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। कैसे खाते पीते हो? अच्छा खासा इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार में आप क्या करते हैं? मैं खुद बनाना जी पकौड़े। ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। बेचते भी हो? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेचने का लीजिए, अपने घर वास्ते बनाई दे। ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਖਰੀਦਨੇ ਆ। बेकिंग पाउडर पा के, बेकिंग पाउडर वाह 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 वाह, और फिर वो जिसले फुलदा ना पकौड़ा, सुभान अल्लाह। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਾੜੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਟਨੀ ਐ ਕਰਨ ਡਈ ਨਾ। अच्छा रेसिपी दस, अपनी आइटमां ना कर। अच्छा पकौड़ों में क्या डालते हैं बेकिंग पाउडर के अलावा? ਉਹਦੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਲੂ। आलू हल्का क्यों? ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਲੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ पूरा पूरा एडा आलू नहीं, जरा छोटा। जो सारे बिकने के बाद थोड़े छोटे छोटे रह जाते हैं ना, वो वाले आलू। ये उसके पीसेस की बात कर रहे हो, वो जो तुम छोटे की बात कर रहे हो वो तो बीज होता है आलू का। ना ना सर बड़ा आलू जड़ा हाँ, लै उसके के छोटे पीसेस। और छोटे छोटे पीस करके एक पकौड़े दे विच एक दो ही आउण बस। अच्छा इसके अलावा, पकौड़ों के अलावा क्या करते हो? ਉਹਦੇ 'ਚ मैं 2 ਸਾਈਕਲਾਂ ਪਾਉਣਾ, एक यार मोटरसाइकिल। मैं कह रहा हूँ पकौड़ों के अलावा क्या चीज? हाँ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ मैं छोटा समोसा नहीं जी, कागजी समोसा, वो खुद बनाना कर। वन बाइट समोसा। 1 बाइक समोसा, वन बाइक नहीं, वन बाइट। हाँ 1 बाइक। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕੈਚਅਪ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਚਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸਮੋਸਾ रच जाता है उसमें। ਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਰਬੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ। उसमें गोश्त कौन सा? ਉਹਦੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, वाह वाह वाह। ਔਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਗਰਮ ਗਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੌਣੇ 'ਚ ਲਪੇਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇੰਜ ਖੁੱਲੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੜਕ ਹੋ ਜਾਏ। कड़क रोटी का कॉम्बिनेशन नहीं है। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। पता क्यों? ये जो शोरबे वाली डिशेस है ना, उनके साथ रोटी वो होनी चाहिए जिसकी कश्ती बन सके। उसका कप बनता है, कप में शोरबा तो डलता है। चलिए 80-82 नहीं, चलो ਮਧਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ हाँ ਦੋ जी, मदरी रोटी के अंदर कप बन जाता है। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ वो ਲੱਗਦੀ जो ਹੈ। आप कड़क रोटी कह रहे हैं ना, वो कीमे के साथ, कढ़ाई के साथ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਪੂੰਝਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ। ਐ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਬੇਜਰਬੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, वो उसके अंदर नींबू तो निचोड़ा ही नहीं तुमने। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀ। ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ। लो फिर तुम अरबी गोश्त पकाते क्यों हो अगर तुमने लींबू नहीं निचोड़ा? ਸਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਾਬਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਬਾਟਾ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੀਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ 2-3 ਅਰਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ। जल्दी बना, अन्नी दे बच्चे ਜਿਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕੁਲੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। नींबू किधर गया? नींबू हल्का जिहा पा लो, हंसने नींबू मन जेब- अच्छा इसमें सब्ज मिर्च सालन वाली या ऊपर से कच्ची डालोगे? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਣ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਦਮ ਦੇ ਗਲਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਸਮੁਸੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿੱਚ। अच्छा जी एक और आइटम मैं बता दूं। ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ। नहीं नहीं नहीं, बगैर खर्चे के। ਅੱਛਾ ਜੀ।
आप इसी खाने के साथ फ्राइंग पैन में 2 चम्मच मक्खन डालें, 2 चम्मच नहीं हो सकते। 1 चम्मच मक्खन, उसमें आप 4-5 सब्ज मिर्चें बड़े बड़े साइज, आधी कटी हुई, बीच में ना आधा उसमें कट लगाओ, लगा हो जी। वो उसमें फ्राई करें, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लें, और जब उसकी रंगत वाइटिश होने लगे उसे उतार लें, वो खाएं फिर इसके साथ। अरे ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ वो तवे पे बना लेते ਤੇ हैं। ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦੀ, एक ही ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਟਕ 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 ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਖੁਸਰਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਟਕ ਪਟਕ ਕਰਦੀ ਮਾਮਾ ਬਾਹਰ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਛ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਧਣਾ ਲਤਾੜਨਾ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। गोश्त कौन लाता है? ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜੀ इसको पहचान है अच्छे गोश्त की? ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। कैसे? ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇ। अच्छा, तो इतने पैसे कहाँ से आते हैं? कैसे गोश्त लाता है? ਸਾਡਾ ਹੁਦਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਦੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। कैसा नेक कसाब है कि तुम्हें फिर भी दे देता है। ਸਾਡੇ ਹਲ ਕਸਾਈ ਦਾ ਪੌਣੇ 55 ਲੱਖ ਹੋਇਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ये बताओ ईद की तैयारियां क्या चल रही हैं? ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੰਘ ਜਾਏ। चलो अल्लाह मेहरबानी करेगा, हम भी आपकी खिदमत ਆ करेंगे ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦਿਓਗੇ ਕੁਝ? इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੈਰ ਹੈ। नहीं, बराबंदी शंदी में नहीं देना। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। हाँ जी। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, अच्छा। ਨਾ ਮਰਚਾ ਤੇ ਨਾ ਨਮਕ। ओहो। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। अच्छा, तो आपको ब्लड प्रेशर है? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਦੀਦ। ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। लेकिन आपको शुगर तो नहीं है ना? ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। अल्लाह का लख लख शुगर नहीं, अल्लाह का लख लख शुक्र है। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। आप एक बड़ा सारा प्याला लें, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਗਾ। उसमें डालें गरम दूध, उसमें डालें गराटो जलेबियां। ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੋ। नहीं नहीं ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। नहीं नहीं, उसको रख छोड़ें, ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾ ਜਵੇ। ये खाम खा खा जाए। खा जांदा जे। आप उसे रख छोड़ें और सहरी के वक्त खाएं। आप नहीं ना खा सकते कोई और चीज, ਹਾਂਜੀ वो इतनी शानदार, वो ठंडी हो चुकी होंगी और यूं लगेगा जैसे आप खीर खा रहे हैं, और खीर पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी और आपका ये जो ब्लड प्रेशर वाला मसला वो भी हल हो जाएगा। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? वो जलेबी वाले से कहे कि शीरे में नहीं डालनी, बना के दे दे आपको। ਅੱਛਾ ਜੀ। आपने उसमें सुकराल डाल देना, दूध में सुकराल डाल दें। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਲੇ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। चले मैं ले आऊंगा साहब। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾइम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਬੈਠੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी जरूर, मैं हाजिर। बताइए किस दिन करना चाहते हैं? ਜਨਾਬ ਆਰਡਰ ਲਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? मैं 1 डिश, एक डिश खाऊंगा। ਸਾਡੇ ਪੱਕਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਚ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? वो जो चीज भी, ਜੋ ਜਨਾਬ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। मैं कहता हूँ कोई चीज बना लें, अच्छी बनाएं, मैं बड़ी रगबत से खाता हूँ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸ਼। अच्छा नहीं, इससे ना बनवाए। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? नालायक है ये, बहुत नालायक। ਲੈ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ ਬਈ? ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਖੁਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਟੋ। उंगलियां ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੋਰਬਾ। देसी मुर्गा तो वैसे आधा तो बना बनाया ही होता है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੋਰਬਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਰਕ ਉਦਰਕ ਪਾ ਕੇ बहुत अच्छा भुना हुआ ਜ਼ਰਾ बनता ਭੁਨਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ है। ਜਾ। क्या बात, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। बहुत सही आता है, अगर आपको पता हो कहाँ से लेना। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਕੜ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ
ਭੁੱਜਾ ਆ ਅਦਰਕ ਧਨੀਆ ਜਿਸਲੇ ਪੱਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਐ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। अच्छा, मैं पट की बोटी बिल्कुल नहीं पसंद करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ? एक तो सीने की अच्छा ओरिजिनल खालिस होता है ना, जो उसकी वाइट बोटी बहुत शानदार होती है, लेकिन जो ड्रम स्टिक है ना गोल, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟ। नहीं वो टांग है, पट उसके आगे शुरू होता है। सुन ला तू ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਪਿੰਨੀ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ। गल तो सुन ला, हर काम च ਔਰ टांग ਜੋ डाल ਦੇਸੀ ਮੁਰਗ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, जिंदा जी। रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। खबर है कि ट्रेन में खराटे लेने वाले शख्स को सवारियों ने अजीबोगरीब सजा दे दी। सर क्या सजा दी होगी? बाहर फेंक दिया होगा उसे। काम का बाहर फेंक दिया होगा। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग सजा उससे दी है वो क्या सर? कि मार भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं फेंक सकते, जुर्माना भी नहीं कर सकते। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ। उन्होंने ये किया कि उसे जगाया पहले, फिर उसे कहा कि तुम खड़े हो जाओ। एक आदमी से कहा कि तुमने इसकी निगरानी करनी। वो बड़ा दहूश सा आदमी था कि इसकी निगरानी करनी है, लेटना तो दूर की बात है, इसे तुमने बैठने नहीं देना। सब सो गए, वो तमाम रास्ता खड़ा रहा। सारा रास्ता खड़े होके सर? हाँ जी, तो इससे खराटों से निजात मिल गई। ये वाकया कहाँ गए? ये दिल्ली से ट्रेन चली थी और मोस्ट प्रोबेबली आगरा आ रही थी। ਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਾਟਾ ਲਵੋ। क्यों? ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं नहीं नहीं, ये खराटे बीमारी है और इसे वार्निंग समझना चाहिए। आपके बेशुमार मसाइल हैं जिनके लिए ये आपको इंडिकेट कर रही होती है। एक तो फौरी तौर पे उसकी उंगली से पकड़कर या टो से पकड़कर, उसके अंगूठे से पकड़ के, पैर के, हाथ के नहीं, वरना वो थप्पड़ मारेगा, उसे थोड़ा सा शेक कर दें ताकि वो खराटे थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा। लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। इसका परमानेंट इलाज है नेजल स्ट्रिप्स। नेजल स्ट्रिप्स होती हैं जो नाक के ऊपर वो, और एक है माउथ गार्ड। आपने देखा होगा अजीब सी एक चीज पहन के लोग सोते हैं, वो खराटे से निजात का तरीका है। एक नाक में भी घुसाते हैं वो कुछ अलासा। वो भी नेजल स्ट्रिप्स ही की एक किस्म होती है, वो अंदर प्लग इन होती है। बड़े बड़े मशाहीर ये काम करते रहे, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन वो खराटे लेता था, अब्राहम लिंकन उसके खराटे आज भी सुनाई देते होंगे व्हाइट हाउस से। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ। और उसकी बेगम बाकायदा उससे मारती भी थी। हाँ जी हाँ जी। फिर नेपोलियन, ओह मुसलिनी, फिर निक्सन, रोजवेल्ट, ये उससे पासे रिवाज ज्यादा है। फिर चर्चिल। सर खराटों की वजह से तो काफी लड़ाइयाँ होती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये एक तलाक तो हुई है ना एक खराटेबाज शख्स को, ये ब्रैड पिट को, लेकिन वो उसके करतूतों की वजह से हुई थी, खराटों की वजह से नहीं। इंग्लैंड में एक खातून है मिसेस चैपमैन, उसके खराटों की आवाज ट्रेन से ज्यादा खौफनाक है। ट्रेन की जो आवाज है ना ये उससे ज्यादा है। इसकी 111 डिसिबल्स है, जबकि ट्रेन की 103 डिसिबल से ज्यादा नहीं है। ये हमारी ट्रेन नहीं, ब्रिटिश ट्रेन की बात हो रही है जिसकी आवाज कदरे धीमी है। अच्छा ये भाई साहब पीछे खड़े क्यों है? ਅਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। और ये निगरानी कर रहा है ये संडा। ਸਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ने भी लिया खराटा। किस किस्म का ਇਹਦੇ मैं रैप्टा मारिया। सर ये बड़ी बीमारी होती है। हमारे एक प्रोड्यूसर होते थे थिएटर के, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो मर गए। मैंने उनको ये लिटरली अपनी आंखों से देखा है कि निवाला उनके हाथ में है। अच्छा, और वो कर रहे हैं। ये तो रूटीन में होता है। जिनकी नींद पूरी नहीं होती ना वो बेचारे यही कहते हैं, नहाते नहाते वो सो जाते हैं। नहीं सर नींद पूरी नहीं, बीमारी है। उन्होंने कई दफा गाड़ी मार दी है, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, आंख लग गई है डम। सर इशारे दे उत्ते खलोते ने ते सारी गड्डियां लंघ गया सोता है उसे। सर ये एक बीमारी है नार्कोलेप्सी। जी जी ये वही होगी। ये वही बीमारी है, खड़े खड़े बॉडी में कोई सेंसेशन हुई है, खुश हैं आप तो आपको नींद आ गई है, उदास है तो आपको नींद आ गई है। हमारे एक रिपोर्टर होते थे नवाए वक्त में, क्राइम रिपोर्टर थे, गालबन GN भट्ट था उनका नाम। वो कहते हैं कि उनकी शिकायत मजीद निज़ामी साहब तक पहुंचती थी कि ये सोते रहते हैं हर वक्त। तो निज़ामी साहब उन्हें बुलाकर जब डांट रहे होते तब भी वो सो रहे होते थे। हत्ता के लोग कसम उठा के कहते हैं कि स्कूटर चलाते हुए भी सो रहे होते थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक फाइटर थे, सईद गुज्जर नाम था उनका। वो साइकिल चलाते चलाते सो जाते थे। साइकिल उन्हें खुद ही ले जाता था घर। पता नहीं सर क्या होता था, वो गुजरांवाला जाना होता था उन्होंने ये लाहौर बिल्कुल से। सही बात है सर, वो मुल्तान से उनका ताल्लुक था। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनका इंतकाल हो गया। तेरे को सारे बंदे मरे हुए ही आए
सर पूरी ट्रेन उन्हें जगाया है। तो क्यों तुम इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? क्या इलाज कराऊं जी, बड़े इलाज करवाए हैं, ये बीमारी पीछे से हटती नहीं है। अच्छा, ना सिर्फ इसके खराटे जानलेवा हैं, ये बोलता भी कितना भयानक है। ये दिखता भी बड़ा भयानक है। लोगों ने मुझे बहुत मारा, अभी तक खड़ा किया हुआ। आप बैठ सकते हैं, आप खाम खादाकारी करने के चक्कर में खड़े हैं। मेरी तरफ से तो आपको इजाजत है, बैठ जाए। सर इनमें बैठन नहीं देना, तो नहीं पता इन किस तरह लियांदा है सफर दे विच। एक अमरीकी बदमाश था जॉन वेस्ले हार्डन। वो एक होटल में सो रहा था, तो साथ वाले यानी उसका हमसाया खराटे ले रहा था। ये उसके पास गया, उसे कहता ओए पासा बदल यानी साइड चेंज कर। उसने कहा मैं नहीं करता। उसने गोली मार कराटे वाले जी, गोली मार दे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਏ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਨਹੀਂ या कोई तुम्हारे नाल बदमाश तो नहीं रहता? एडे माड़े बंदे नु खराटे नहीं आंदे। बहुत ही रोटी खाने वाला बेवकूफ भद्दा नहीं, ये सारी चीजें गलत हैं कि बहुत ही रोटी खाने वाला, मोटा नहीं। किट्ठा सिर ते वाल ना हो। यार आपको क्या प्रॉब्लम है? ओ भाईजान इधर मेरे वाले पास है। मेरी बिल मैं उन्हें- नहीं मेरी गल पहले सुन। मना करने लगा था। यार नहीं करो ना मना, मैं खुद कर लांगा। मैं को अच्छा टुंडा भाई, नहीं तुम लगे रहो। लंगड़ा सर टुंडा नहीं, बच्चियां मैं- लोग दही बाबा, खा एक मिनट, लेंगे। अरे बाबा बच्चियां ने परोठे खा ओ लेंगे। बाबा मेरी बच्चियां ने दही अरे खा मना करो, देखो मैंने गल नहीं करन दे रहा। लगे रहो। 8 परोठे खांदा जी। ओ ठहर जाओ एक मिनट, पढ़ी लिखी चाम चिड़े होती ना। मेरी बात में जो भी बंदा को बात करे ना, मैं खुद समझा लूंगा। आपने मेरी हिमायत नहीं करनी। मैं तो अपने डिकोरम का ख्याल रखता हूँ। तुम्हारी आप खुदा की कसम अपने डिकोरम का ख्याल नहीं करते। तुम्हारी हिमायत कौन पागल करना चाहता है? मैं आप तो जो वैसे ही कहता हूँ कि एक मछली मंडी नहीं बननी चाहिए। नहीं, मछली मंडी में बनने देता भी नहीं। ये नहीं मुझ में इतनी हिम्मत है। तुम में हिम्मत से ज्यादा हवा है, सिर्फ हवा भरी। जैसे पिछला टायर होता है ना ट्रैक्टर का, उसमें हवा ही हवा होती है। अच्छा, इसी तरह की बातें करके ना किसी दिन कोई नुकसान होगा। तुम्हें हार्ट अटैक होगा, नीचे गिर जाओगे, हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। डोंट वरी। नहीं सदके हम उठा के ले जाएं कैसे? यार खींच के ले जाएंगे। हाँ ये ਖੇਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਧਰੂ ਕੇ खींच कर, घसीट कर, थ्रू कर, एक ही चीज है। एक ही चीज है। वो जिस तरह आप चाहेंगे आपको ले जाया जाएगा। सर आड़ू साहब जहाज च भी बैठन दे, जहाज वाले कहते हैं आपके साथ कौन कौन है? एक दफा ये हमारे साथ गया जहाज पे, अल्लाह खैर। वो इसको पेटी बांधने आई बेचारी, रो रो के गई। आखिर वो कोई रस्सा लेके, इसे क्या बांधा गया था? वो डबल पेटी लगाएगी। डबल पेटी, बल्कि उन्हें जिन्नी उथे पेटी पे सारी लाती सी। ऐसा नहीं है, सही बताओ। वो हुआ है एक दफा। एक्स्ट्रा बेल्ट उनके पास क्यों होती? इसीलिए होती ना। एक ਹੁੰਦੀ है यार 5-6 लेकिन दिन। उसके बाद ये अभी रिसेंटली मैं, हनी और ये बब्बू गए यूके के टूर पे। पूछें, वही सिंपल बेल्ट, बड़ा जहाज एक्स्ट्रा नहीं लगा। वो जहाज बड़ा होगा। हाँ बड़ा C-130 लाश लाके गए थी मेरी। यार वो देखो फिर सो गया पीछे। तो यार इतनी जोर से सर सौन नहीं देना इन्हों। सानू जिन्नी टेंशन दी थी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। अब यार आपने सोना नहीं है प्लीज, वरना ये फिर मारेंगे। सर खुदा की कसम बहुत कोशिश की है ये बीमारी खत्म हो जाए, बड़ा इलाज करवाया, ये पीछा छोड़ती नहीं है। अच्छा, अब तुम हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करो, तुम्हें नींद नहीं आएगी। सर इसीलिए तो नींद आ रही है जो आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। नहीं, वो साडी गुफ्तगू नू बोर समझ रहा है। खुदा की कसम मेरे दिमाग की दही कर रहे हैं आप। दिमाग की मुझे अब इससे कोई हमदर्दी नहीं, इसे ठीक पड़ी है। वैसे आड़ू आप भी कराटे मारते होंगे कभी? नहीं भैया, मैं नहीं खराटे मारता, ये हकीकत बात है। हमारे साथ एक दफा हज के दौरान दो एक साहब थे, तौबा तौबा तौबा, खेमे में थे। फिर उसके अलावा भी वो कहाँ नहीं थे, बल्कि वो अपने खराटों की वजह से पहचाने जाते थे कि आज वो कहाँ है, पता चलता। एक बंदा लंदन से। तौबा, उनमें से एक तो बैंक में था और एक कोई और था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन तौबा। आपके खराटों की आवाज कैसी होती है? मैं खांदा ही बहुत थोड़ी रोटी, मेरा की खुराटा। वो इसका रोटी ज्यादा खाने या कम खाने से नहीं है। सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਓ पैदल। वो नहीं ज्यादा खाता। ए तुम्हें बाबा कितनी दफा इधर भाईजान, मैं नहीं खांदा या खांदा मेरा जाती मसला, तुसी नहीं बोलना प्लीज। आपके बारे में मैं तो मेरी एक मिनट गल सुनो। मैं हुन कसमा, ये शो दा मामला है, कसमा शस्मा मैं नहीं नहीं, चाहता। मुझे पता है आप कम खाते हैं। नहीं जी, मेरी तुसी छड्डो गल। बाबा इसी दी कसम खावे, ये जिन्ना खांदा ना, मैनू लगदा है रला चोक रहा अपना। इसको जरा एक्सप्लेन करें इस बात को। रला होता है जो मरने से कुछ अरसा पहले बंदा अपनी खुराक जो उसके दाना पानी चुग रहा होता। दाना पानी चुग, उन्होंने कहते रला चुगना। मैं सर कल की बात आपको बताऊं, बाहर हमारे एक सीढ़ी पड़ी हुई लोहे की, आपने देखी, जिससे हमारे ये लाइट बैठे ठीक करते हैं। खुदा की कसम उस सीढ़ी पे रोटी रख के खा रहा था ये बंदा।
सीढ़ी को ये बताओ देखो कसम खा गया ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਟੀ- ਸਿਰਫ ਸਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਰਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਆਉਣੀ। एंशंट रोम में जब सजाए मौत के कैदी उनसे तलब करते थे ना खाना, तो फिर कहा करते थे कि बताओ तुम क्या खाना चाहते हो। क्योंकि सुबह एग्जीक्यूशन होती थी, वो जो मांगते थे फिर देना लाजमी होता था। आमतौर पे शहद से तवाज़ो की जाती थी। यार एक इसी तरह का एक अमेरिकन था, गैंगस्टर था वो। अच्छा, उसने बहुत सारे बर्गर्स मंगवाए, सैंडविचेस मंगवाए। उसने कहा मुझे चिप्स भी चाहिए, मुझे ड्रिंक्स भी चाहिए। जब वो सारी चीज़ें आ गई उसने कहा जी खाएं, कहते नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसी ऑप्शन दी जाए आप क्या खाएंगे? मैं खाऊं आपकी मतलब मैंने कत्ल करके ना वो नहीं नहीं, वो वैसे ही पूछ रहे, आखिरी ख्वाहिश के तौर पे बंदा क्या खाए। आप बताएं आड़ू साहब कि अगर आखिरी खाना खाना हो तो क्या खाना पसंद करें। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ? मैं सबसे पूछने लगा हूं। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਆਓ ਨਾ। सो रहा है भाईजान, जागे। जाग रहा हूँ जी, जाग आप रहा क्या हूँ। क्या खाना पसंद करेंगे आखिरी ताम के तौर पे? बिरयानी खाने को जी चाहेगा। अच्छा जी, आड़ू साहब। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। नहीं, कोई चीज एक डिश। ਸਰ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ जब ਖਾਵਾਂ? वो बता रहा था उस वक्त। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। अच्छा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? मैं जी नहीं, ये तुम्हारे साथ जो बैठा है। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ। तो यार आखिरी खाना वैसे ही मतलब है कि अगर आपने इस कुर्रे को, इस प्लेनेट को छोड़कर किसी और प्लेनेट पे जाना हो, ਕੁਰੇ ਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। पूछा तो है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ। कितने भाभी तुम बताओ। मैं तो सर मरण तो पहला अंब रज के खाना चाहूंगी। वाह, बात हुई ना कि उसका लॉयल्टी अपने ब्रांड के साथ कि आम टिका के। मुझसे पूछो ना तो मैं चूली खाना चाहूंगा बहुत ज्यादा। चूरी चूरी नहीं, चूली। चूली ਚੁੰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ रिकॉर्ड खुबानी, हाँ बहुत शानदार खुबानी, और वो भी बल्तिस्तान की। ਜਿਹੜਾ ਚੂਲੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। चलो अनवर टोल तो है ना, बहुत आला आलू बुखारा तो है ना। जो ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਅਨਵਰ ਟੋਲ खान तो पहले मर जाओ या बाद च मर जाओ। बहुत बुरी बात बाबा जी। वैसे अपना हकीम साहब आपको इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਬੋਲ ਪਵੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थी।